Recording I started. Good morning everyone. आप सभी को नमस्कार. This is Sanjeev Kumar, section officer from CBSE Affiliation Unit, Delhi. I heartily welcome to all the members of this review committee in respect of US 000532627 Sant Mary School, Mayurvanj, Odisha. I welcome first member Dr. Resma Ganesh ma'am, Principal SSR Vidya Mandir, Bangalore. You are welcome to this meeting, ma'am. Namaste. And I welcome second member Dr. Indu Dubey ma'am, Principal Nirja Modi School, Jaipur. You are welcome to this meeting, ma'am. Namaste. I also welcome Principal as well as member of management of the school. And I request you, sir, please introduce yourself along with your identity card. अपना परिचय पत्र दिखाते हुए परिचय दीजिए, sir. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, sir. I am from St. Mary School. Jayant Kumar Behera, the principal of the school. Sir, my identity card is here. This is my identity card. Okay, sir. Sure. Any member from management, sir? Yes, sir. The academic director of the school, Mr. जी, Pranakushna Sahu. नमस्कार. नमस्कार. I'm academic director of the school. My name is Pranakushna Sahu, and it is my icon. Thanks you all. I am the academic director. This school was started in the year 2000, and from that time I have been connected with the school. And this school is situated in the remote area of Odisha, in the district of Mayurvanj. And we have tried our best to build this institution, and you have given education to the poor people and also the tribal area students. This is our pride, this is our attempt, and we have left no stone unturned for the improvement of the students and also the school. Thank you, sir and madams. Thank you, sir. Next, sir, the coordinator, sir. Yes. This is Samir Ranjan Sai, the CBSE coordinator, IT and site coordinator of the school. This is my ID card. Now I request members of the committee to go ahead along with the rejection letter dated 31st of July 2025. There are 8 points mentioned in the letter, and it would be appropriate if documents are seen first. Thereafter, there will be a virtual tour. Okay, ma'am? Yes. So please show the documents mentioned at serial number 1 and 2. Building safety certificate and land certificate, sir, please. So through screen share. Okay. Okay, sir. Okay, just. If you can push back a little bit and there can be a little distance between the camera and you, that will help. थोड़ा सा कैमरा और अपने बीच में थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए. वो स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे मैम. स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं. I think they are having network issues. I think so. Let's come back. Building safety certificate. अगर आप दिखा सकते हैं. थोड़ा सा जूम कर लीजिए. Zoom. हाँ. Sir, is it fine? So, sir, you are having 2 blocks, right?
Previously it was 2 blocks and 1 block is under construction. The letter which was given in that previous letter, it was mentioned as 2 blocks. But now we have rectified that and only 1 block is completed and another block is under construction. So that block, in that letter we have rectified. I'm not able to get the clarity because here it is saying is having 2 blocks as per detail, isn't it? 2 So blocks detail are of- mentioned. Correct. Even here it is mentioned in the first line. If I see, it is mentioned still as having 2 blocks. 2 blocks were there, but 1 block is under construction. That 1 floor has been completed and second floor is means under construction. So 2 blocks are there. Only 1 block is on means running, and for that only we have rectified that. The certificate for 1 block they have given they have corrected the certificate, and it means 1 block is under working condition and working in the school, and another block is under construction. Listen, Okay. listen, When listen. is the date of Listen, issue of the certificate? Sorry, Date of issue of this certificate. it is February the February 25. I can see 25. that. Now, listen to me. So your reject letter says 2 building blocks. Am I audible? It is audible. Yes, ma'am. So your letter, reject letter says 2 building blocks in the certificate that you are showing us on the screen. This certificate also says is having 2 blocks. Yeah, The 2 second blocks. line of the certificate. Ma'am, 2 blocks is there, but they told that the department who have issued the certificate, as you have 2 blocks and you have deposited that document like the plan and all for 2 blocks. They told that 2 blocks are there, and as we inspected the campus, 2 blocks are there. So we have mentioned 2 blocks, but 1 block as it is running. So we have mentioned 1 block is there with the 3 So floor. only 1 And block is another, functional. Am I right, yeah, sir? 1 block is functioning and another block is You have under construction. not yet started using the other block. Yes, ma'am. Okay. Now, can you scroll down and show me the signature, the authority? Yeah, ma'am. Can you, is it visible now? Yes, it is visible. Okay. Fine. Is it okay, ma'am? Yes, from my side, it's fine. Hindu ma'am, anything you want to check? It's fine, although this is not in order still. Their letter says it is G+2, and here it says 3 stories. 3 floors. So are we? Yeah. Okay, whatever you have, we'll go with it. Okay. Next document, sir. Land Okay. certificate. Land certificate. Land certificate. So please just wait for a minute. Have to produce the land certificate. You need to zoom it little bit, sir. This is also 25th February 25. Certified by the land. So it is a lease, no, sir? Am I right? Sorry, Sale ma'am. deed. It is No, a no, sale it deed. is not appendix 10, ma'am. According to the CBSE format. I understand that. I'm asking, is it a lease land or is it owned? By It the is school. first it was the sale deed, and further it has been leased to school. The owner of the land is Santosh Kumar Sahu, who is the trust member, and further the trust member has leased the school for 99 years. Okay. Single contiguous. So it has got how much acres, sir? It is around 3 acres, exactly something less than 3 acres. 3 acres. Okay. So it is
own land, but 2.93. the owner 2.93. has also leased it. The trust has also trust has leased it to the school. So it is both Yeah, your that, own it is land not in the, yeah, ma'am. leased. Actually, it is in the name of Santosh Kumar Sahu, who is the managing trustee of the trust, and the managing trustee has leased the total land to the school Okay, got it. For 99 years. for 99 years. Yes, ma'am. Yes. Just come down. I want to see the signing authority. Yeah, ma'am. Additional Tahsildar. Okay. From my Total side, it's clear. area of land in acre square होना चाहिए ना, area of land in square meters. How much हाँ, is it in square? इन्होंने लिख दिया है एकड़, 2 एकड़ 93 सेंट्स, ऊपर क्लियर किया इन्होंने, डेसिमल Yes. 2 एकड़ हाँ एवं हाँ. प्लॉट नंबर इतने एरिया. Yes, yes, yes. From my side, Land it's 2.93 area. हाँ. हाँ, ए मीन्स एकड़. correct. सर Acre am I meter. right? I don't. ए मीन्स एकड़ A means acre, sir. and decimal 9930 decimal. 93 decimal. Decimal. Yes, ma'am. Yes, sir. But in first para you have mentioned sale deed. Go Sir, to first para. Yeah. Sale deed. Then why it Yeah. is mentioned lease period or allotment period? The original land is in the name of the managing trustee in the form of sale deed. Sir, it is already mentioned in second para about lease period. Yes. So Sir, what is actually- need of it is mentioned it is mentioned here first in first para also. sir, the owner of the land is owned by the managing trustee in the form of lease deed, because there are different type of deeds, lease deed, gift deed, and sale deed. So the owner has owned the land in the form of sale deed. Further, he has leased as in the form of lease deed. Is the school managed by a trust? Yeah. What is the name of the trust? Dr. Santosh Kumar Sahu Charitable Trust. So his own land, he has leased it to the school. This is what I understand. Yes, Yes. sir. Yes, exactly, ma'am. How Fine. much is the land in square meters? Yes. Around 12,000. It's exactly around 12,000 square meters. So when we go further, there is this discrepancy also that has been mentioned in your application. You have mentioned 10,198 square meters, and the inspection committee has mentioned 11,857. So if you can give us the exact figure on how much is the land. Ma'am, I'm showing it here. It is 11,857 only. 11,857. Yes. Yeah, ma'am. 11,857. Okay. This is the correct land area. Okay. And sir, one thing I want to mention it here, sir, as the school, that land area which has been mentioned there in the application, actually that was automatically imported from Oasis. And previously in Oasis, it was means mentioned like that. So now we cannot able to change that one. That's why it is there in the Oasis, and that has been imported to the application. You should apply for land correction, sir. Okay, sir. On Next portal. we will apply for that. You are already affiliated school, so you should apply for land correction. Okay, sir. Sir, we'll do it. Ma'am, shall we go to the next point? Yes, we can Yes. go. Sir, stop sharing now and start virtual tour from main gate of the school. Okay, अब sir. मेन गेट पे जाइए सर और वहां से वर्चुअल टूर शुरू कीजिए. स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए.
आप कर जी ओके सर अभी मेन गेट से शुरू changing the camera for back what sir I main gate मेन गेट पे जाइए सर जी पिला क्वेश्चन से देखिए सर सिक्योरिटी को बोलिए गेट खोले सिक्योरिटी को बोलिए कि गेट खोले गेट खोल गेट खोल गेट खोल गेट खोल तमे पड़ा गेट खुलो प्रसन्न भाई तमे बाहर को जैसे जल्दी sir now I am converting to back camera sir this is the road sir is it visible now sir Just lift the camera to show the name of the school at the entrance. Show a long view of the compound, right side of the gate. this is the small gate and this is the main gate Yeah, just show outside once again, sir. which one sir Next to the gate. Either main gate, stand at the gate and a little from the distance if you show the main gate. So that we can see right side and left side little bit. is it fine sir Okay, okay, you can enter. just wait here, just stand here. इधर रुक जाइए एक मिनट, रुकिए. Stand here, please stand here, and tilt your camera to show the boundary in the length, right and left side both. this is the boundary Let them show from inside. yeah I'll show it You show from inside the boundary properly. and this is from right side Okay. and regarding that sir barricade construction area sir we have barricaded this one cordon we have made the cordon this is the under construction building So we can't see the compound wall there next to the gate. yeah it is there sir I'm showing going inside it has been blocked थोड़ा ओपन करो ये थोड़ा हो गया है ये जो है वॉल है इसके अंदर ये बिल्डिंग जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर अंदर इसको हम ब्लॉक कर दिए हैं इस तरह से ये जो है आपका पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग है जिसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है और ये जो बैक साइड जो बिल्डिंग है ये कंप्लीटेड है प्रीवियस जो रनिंग कंडीशन में है ये है सर कंप्लीट बिल्डिंग आपका Yes, sir. boundary show us the boundary from inside. We couldn't see the boundary. yeah yes sir Is your new building touching the boundary? yeah no there is yeah ma'am. This is the boundary wall and there is around 10 feet gap within the building and boundary wall Okay. yeah You can go inside the main building. Show us the how you'll enter the main building. ma'am shall we complete the sports first it is in the ground floor and the playground is there The sports. or No? Okay. The No, I just outdoor wanted to see now you have come here. No, just show me the entry to the block.
Which is the entry? Yeah, this is the entry. This is the entry. So there is no steps, nothing. Another 2 entries there at the both ends. This is the middle part I am showing you. Okay. So it enters like this. Okay. This is the sports room for indoor games. Show a long view of the room first. Sorry, ma'am. Long view. You know, from the door, the whole room. Is Okay. it fine now, ma'am? Now go closer. All the equipments. Okay. Turn your camera. I want to know what is the dimension of this room. It is 500 square foot, sir. It's 500 square feet. Okay. And you have a PE instructor recruited? Instructor is there. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning, sir. Sir, आपका नाम? Silent. Yes, ma'am. Your name, please. Himanshu Prusti. And your qualification? Qualification BPEd. BPEd. You have BPEd. Yes, sir. Okay. And your total years of experience? 2 years. 2 years. You have kept a stock register? Yes, ma'am. Sports items, you have the stock register? Yes, ma'am. Indoor, what all games do they play? Carom is play now. Carom, then? Carom, chess. Okay. Dr. Reshma, are you able to see the teacher's face? Yes. Okay, so I think I have a problem. I'm not able to see the face. It's like half. No, full below like the eyes. see. No, full is visible. Okay. Outdoor भी है आपका? I'm moving. How much moving sports? towards the playground. Okay. It is the playground. What is the playground size? How much area you have kept for playing area? It is more than 1 acre, ma'am. Around 40,000 square feet. More than 40,000 square feet. So much grass is grown. Yeah, now it is rainy day, so lots of, and in some, mostly it is a forest area, so most rains, always it is raining, ma'am. Okay. So what all outdoor sports facilities you have? Ma'am, mostly these students prefer to play football, and sometimes the girls, they prefer football pole is there? Football pole is there, yes. Where is the football? Where? Football pole kahan gaya? So I'm not seeing any markings on the ground. Nothing is there. No net. Any other games like Ma'am, the cricket net, practice net is there? Is there any cricket practice net? practice net is not there, ma'am, because nowadays it is heavy rain, and today only we can able to come to the ground. Mostly we cannot able to, means rain water is there. When once the rain will be there, around half feet water will be there on the ground. Even the poles you have removed? No, this thing, poles for any outdoor? Yeah, we can't see any fields, football, cricket nets, basketball. So you don't have designated areas.
आपका कोई फील्ड मार्क है अलग अलग, जैसे दिस इज नहीं, क्रिकेट फील्ड, all- दिस इज बास्केटबॉल, दिस इज फुटबॉल? नहीं, बास्केटबॉल नहीं है हमारा सर मैम। फुटबॉल है। Okay. बच्चे लोग बहुत कम यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। पोल कॉन्फ्रेंस किधर है? एटलीस्ट पोल दिखा दीजिए ना। गोल्स नहीं है, वो हटा दिए हैं पोल बारिश का में। नहीं है, या क्रिकेट प्रैक्टिस का फूल। वो एक तरफ क्या है, वो इतना पौधे हैं वहां पर? हाँ, वो बाउंड्री वॉल के साइड में पेड़ है मैम। ओके, सो बाउंड्री आप वॉल देख नहीं सकते दिखता है वहां पर। हाँ, वहाँ पे है ना मैम, बाउंड्री वॉल है, लेकिन वो ओके, पेड़ ठीक हो है, गया है। ठीक है, ठीक है। और ये जो इधर से आप टर्न करके ला रहे हैं, उधर बिल्डिंग के वो बाउंड्री के साथ क्या बना हुआ है? कहाँ पे? यहाँ पे ये छोटा वाला, नहीं, ये जो उधर दूसरी तरफ, पीछे पीछे। अदर साइड। इस साइड हाँ, व्हाट इज दैट? कम्प्लीटली बाउंड्री। मैं नजदीक आ जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये बाउंड्री वॉल है, बहुत हाइट बना दिया है वहां पे। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ये पीछे वाला जो होता है ना, ये जंगल एरिया है ना, कोई एनिमल्स ना आ जाए पीछे की तरफ से। सामना साइड तो रोड है, इसीलिए इसको ज्यादा हाइट बना दिए हैं हम। ये हाइट बन गया है, लगभग 10-12 फीट हाइट बना दिए हैं। ये मंकीज वगैरह घुस सकते। मेरा सिर्फ ये कि गेंद वहां पर वो पौधे के बीच नहीं जाता है। नहीं नहीं, वो तो रोड है ना, वो साइड में नहीं आते हैं जनरली, वो मेन रोड है सर मैम। नहीं जो नहीं आपको नहीं, जो गेंद वो बॉल से खेल रहे हैं ना, हाँ, सेफ है क्या बच्चों के लिए? जी मैम, ये पौधे खेल के रहे हैं बीच अगर गया वो बॉल। मैम। उतना मतलब घना पेड़ नहीं है, बस एक लाइन में बाउंड्री वॉल के साइड में लगा हुआ है, जो उसके अंदर ऐसे घुसेगा नहीं, बस वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं अगर आ जाऊं पास तो आप दिखा देंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। आप मार्किंग करना चाहिए था कि फुटबॉल का पोल के साथ, क्योंकि आज इंस्पेक्शन था ना, तो हमको हाँ, तब क्लैरिटी मिल जाता था, इसलिए कि हाँ, क्या And क्या in the letter, क्या क्या in your गेम्स letter, खेल रहे हैं बच्चे, yeah, फुटबॉल in खेल your रहे हैं, letter, बैडमिंटन खेल रहे हैं क्या, yeah, it is थ्रो also बॉल mentioned in the letter या खो that खो। the outdoor sports area is very poor and no. इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना कुछ मार्किंग नहीं है, कुछ पोल्स भी नहीं है, नेट भी नहीं डाले, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं ये सब। अच्छा मैम, वो सही है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा बारिश के वजह से सब कुछ वो हो जाता है समझ जो। में आ रहा है हमको, सिर्फ आज इंस्पेक्शन था ना, तो पोल, फुटबॉल का पोल दिखना चाहिए था, जी एटलीस्ट मैम। हमको समझ में आता है। हाँ, फुटबॉल का पोल है तो डेफिनेटली है, खेल रहे हैं। ये छोटे And the बच्चे के letter लिए also says आप that. देख The सकते हैं letter यहाँ पे also says अब इसको बंद the कर दिया है, areas are. इसलिए मतलब बहुत ज्यादा ग्रास हो गया है। मतलब बारिश इतना ज्यादा होता है कि बच्चे लोग खेलने के लिए इसके अंदर भी अभी नहीं आ पाते हैं, इसके लिए इसको हम क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अंदर अंदर street जा का- सकते हैं। ठीक है, अंदर जा सकते हैं। जी सर। हाँ, shall we move towards the lab? हाँ, we can go to, yes, the labs. I just saw when you entered the building, there is लैब some कौन से electric. फ्लोर में है? जी मैम, लैब कौन से फ्लोर में है? सेकेंड फ्लोर में मैम। सेकेंड फ्लोर। फिर आपको लिफ्ट है? अब ये बिल्डिंग में नहीं है बिल्कुल, ये बहुत पुराना, वही 2000 टाइम का। अभी अकॉर्डिंग टू नए सब कुछ वहाँ पे रैम्प हो रहा है, मतलब न्यू बिल्डिंग में। इसमें अभी के लिए जो है चल रहा है। बाकी ऊपर फ्लोर में लिफ्ट के लिए कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं था। अभी जो बन रहा है उसी के अंदर इसके भी साथ लिफ्ट बन रहा है इसमें। नहीं, आपका लैब्स इस ब्लॉक में है ना? हाँ, ये लैब, तो रैम्प है लैब क्या? रैम्प ग्राउंड फ्लोर में है या ऊपर है? ऊपर है मैम। ऊपर है, तो ग्राउंड फ्लोर में होता तो कोई बात नहीं था। अब बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ लिफ्ट या रैंप है क्या? प्राइमरी
सेक्शन किड्स के लिए ग्राउंड फ्लोर में हम क्लास रख दिए। फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए रैंप भी नहीं है क्या? जी मैम। फर्स्ट फ्लोर में आने के लिए रैंप है क्या? नहीं, इसमें रैंप नहीं है। जो अब है आप लिफ्ट के सेकंड लिए फ्लोर पे आ अभी अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसी में लिफ्ट प्रोविजन है मैम, और आपको लिफ्ट भी दिख। एक बार सुनिए सुनिए, अभी आप सेकंड फ्लोर पे आ गए ना? जी मैम। आप सेकंड फ्लोर पे आए हैं अभी? जी मैम। तो सेकंड फ्लोर तक आने के लिए ओनली स्टेयर्स है, रैंप भी नहीं है, राइट? जी मैम। जी मैम। ओके। मैम, पहले बाहर डोर पे इसका लैब का नाम दिखाइए, क्या नाम है लैब का, कौन सा लैब? फिजिक्स लैब। ओके, ठीक है। अभी लॉन्ग व्यू दिखा दीजिए, पूरा फुल डोर से लॉन्ग व्यू। पहले आप कैमरा टिल्ट मत कीजिए, वहां से ऐसे ही दिख रहा है। हाँ, ये रूम का डायमेंशन क्या है, साइज? इसका 600 कितना? नहीं, एक मिनट, इसका पूरा एक ही दो वर्क स्टेशन है यहाँ पे बस, हाँ और वो भी मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक मैम है, ये तो पूरा मतलब नहीं है ये रखने के लिए? नहीं, लकड़ी नहीं है, ये पूरा एंगल से बना हुआ है इसके अंदर पर, मतलब फिक्स करके जो मूव नहीं हो सकता मैम। आप देख No, no, this सकते is हैं not- है ना, Not- ये फिजिक्स लैब है ना? उसका प्लग पॉइंट सब कहाँ कैसे बना हुआ है? मैम। स्टोरेज मैम प्लग पॉइंट्स किधर है? बच्चों के लिए करने के लिए प्लग पॉइंट्स है क्या? है मैम। वो टेबल में कुछ प्लग पॉइंट्स है? हाँ, वो एक्सटेंशन के हिसाब से करना। एक्सटेंशन, सो वो टेम्पररी किया आपने? आपका क्लास में क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? सॉरी मैम। कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ है क्लास 11 12 में साइंस के लिए? अभी तो सर एडमिशन भी नहीं हुआ है हमारा। तो ये कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? ये 10th क्लास में मैम। 10th ये रूम का साइज क्या बताया आपने, डायमेंशन? 600 स्क्वायर 600 स्क्वायर फीट। और आपका फिजिक्स कोई लैब असिस्टेंट है? हाँ, ये मैम जो टीचर है हमारा टीजीटी टीचर, सो ही वो भी है मैम उसको। हाँ, उनसे हेलो, नमस्ते मैम। मैम, डू यू हैव यू केप्ट अ स्टॉक रजिस्टर? Stock register. Can we have a look at the stock register? And this is the stock. Okay, show us the first page. You'll have to turn it towards the camera. It is, we are not able to read it. This is the index. Yeah. Show me the items that is there. Items.
एंट्री दिखा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिए। हाँ, I'm not able to read it. Can you zoom it a little bit? What is written there? Refraction. Try glass slab. Okay. Is that an item? Glass slab. Show the next page. Next. Because you have not written how many, what is there. Show the next. एक What बार is the नीचे next? करिए। Show us the list of items that you have. What are all the items that is there in physics lab? Drawing board, basic magnet, and meter. बस उतना ही स्टॉक है आइटम्स फिजिक्स लैब में, बस 4-5 आइटम्स, बस उतना ही है। शायद वो एंट्री नहीं किए हैं। यहाँ पे सर एंट्री आप जब कर रहे हैं तभी एंटर होना चाहिए ना। प्रीवियसली मैम इस तरह से वो लिख दिए थे, जो अभी स्टॉक रजिस्टर को ठीक से अपडेट नहीं किए हैं सर। वो मैनुअली जैसे स्टॉक एंट्री होता है उसी टाइप का लिख दिए थे, वहां पे जैसे क्वांटिटी लिखा गया है इस टाइप का। उसके हिसाब से कितना आइटम्स है, क्योंकि दिस इज केमिस्ट्री आल्सो। हाँ, आपको इसमें फिजिक्स का अलग ये सब नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ट्राइपॉड वो सब है इसमें, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का है ना। मुझे फिजिक्स लैब का कितना स्टॉक, क्या क्या आइटम्स रखे हैं, क्योंकि आपने ये लैब भी ना लैब के हिसाब से नहीं बनाया है। एक टेबल सिर्फ 2 टेबल है डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों के लिए वर्क स्टेशन जैसा नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेशन टेबल जैसा है। बच्चे कैसे वर्क करेंगे, प्लग पॉइंट्स भी नहीं बनाया है, क्योंकि आप अभी सीनियर सेकेंडरी के लिए 11th एंड 12th के लिए देख रहे हैं ना। So basically all three ठीक से होना है, उन लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना है ना। No, this is not enough. ये हो गया, ये हमने देख लिया। अब आपका इधर में स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है, स्टोरेज भी एडिक्वेट नहीं है, बिकॉज 11th एंड 12th के लिए कर रहे हैं हम। लैब असिस्टेंट कहाँ है? लैब असिस्टेंट कहाँ है? हम टीचर है, अभी तो लैब स्टार्ट नहीं हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसीलिए रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। बस ये टीचर जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं बच्चे लोग का। वो ठीक है, आपका स्टॉक रजिस्टर ठीक से एंट्री करना चाहिए, ये टेबल्स, वर्क टेबल्स होना चाहिए बच्चों के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। ये आपका इसमें ये टेबल बहुत टेम्परेरी है और टीचर का डेमोन्स्ट्रेशन टेबल जैसा है, बच्चों का वर्किंग टेबल नहीं है। And this is the deficiency that was there at the time of inspection. तो ये आपको बताया भी है कि आपका लैब टेम्पररी लग रहा है और अभी भी टेम्पररी लग रहा है, अभी भी आपका लैब इज नॉट परमानेंट। ये सब उसके बाद ही चेंजेस हुआ है, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या चेंजेस किया आपने उसके बाद, इंस्पेक्शन के बाद क्या किया है? जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी है, उस टाइम में थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट हमको पता नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट करना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब ऐड किए हैं उसके बाद। तो सर उस दिन इंस्पेक्शन के टाइम में बताए कि सर सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए, एक्चुअली हमको लैब में थोड़ा पता नहीं था उसके रिलेटेड, तो हम सीटिंग अरेंजमेंट के बाद ये सब आइटम्स जो है ना, आप स्टॉक रजिस्टर में भी एंट्री कर दीजिए।
जो आपने नया इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिया बताया ना आपने, वो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट लैब दिखा सकते हैं, केमिस्ट्री या बायो लैब, बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट लॉन्ग व्यू दिखा दीजिए, डोर से पूरा फुल रूम दिखना चाहिए, वहां से लॉन्ग व्यू। हाँ ठीक है। Now again there is only one table. अभी ये टेबल दिखा दीजिए ठीक से। टेबल के ऊपर हमको टेबल कितना टेबल्स है दिखाना चाहिए। हाँ या सेंटर से, ओके, सिर्फ एक लॉन्ग टेबल रखे हैं, ठीक है। And where is the storage? Storage दिखा दीजिए, कबर्ड्स दिखा दीजिए। आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बायोलॉजी इक्विपमेंट्स है, वो सब कहाँ पर रखे हैं, ठीक है। और बाकी का, ठीक है। ये आपका स्टोरेज है। और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। कितना माइक्रोस्कोप्स है? अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप 3 है और सिंपल माइक्रोस्कोप 4 है। ठीक है। आप इसमें स्टॉक रजिस्टर्स है? हाँ है। बायोलॉजी का स्टॉक रजिस्टर है, इसमें एंट्री हुआ है, दिखा दीजिए। ये क्या चार्ट पेपर जैसा दिख रहा है? हाँ चार्ट मॉडल्स, ओके ठीक है। मॉडल और हार्ट मॉडल, ओके, ये मॉडल्स, हाँ मॉडल सब अंदर। अब नेक्स्ट कौन अछि? अब नेक्स्ट अछि। एक बेसिन रखे हैं, ओके। और ये स्लाइड्स बनाना होता है 9th 10th में, तो स्लाइड्स का वो बॉक्स है क्या जिसमें स्लाइड्स बनाते हैं? हाँ, एक सेकंड मैम। लाइट्स के है कुछ? स्लाइड्स कहाँ है? वो स्लाइड्स ना, हाँ कहाँ है? अच्छा, वेयर इज द बॉक्स? सब बच्चों को बनाने के लिए स्लाइड्स के लिए कहाँ है स्लाइड्स? सफिशिएंट क्वांटिटी में है स्लाइड्स? कितने कौन? There's a box of slides. Box of slides. Okay. They have purchased equipments, but they have not entered in the stock register, nor have they done a storage cupboard properly. And Yeah. there is no And workstations for students. They have done it more like a composite look only, composite lab look. So we are now going to the chemistry So lab. we'll see the next lab. We will see the, with guidance, they will be able to do the working stations. नहीं, केमिस्ट्री लैब दिखा दीजिए, केमिस्ट्री, ताकि तीनों लैब खत्म हो जाएगा। हाँ केमिस्ट्री लैब, ठीक है। वहां से लॉन्ग व्यू दिखा दीजिए। सेम अरेंजमेंट है जैसे बायो लैब का किया है। ये भी क्या डायमेंशंस है ये? सेम सर, तीनों चारों रूम का सेम ही डायमेंशन है, 600। यहाँ पर आप ऊपर एग्जॉस्ट फैन है क्या वो? हम यहाँ पे कंप्लीटली सब ये है तो एग्जॉस्ट फैन डाले हैं क्या उसमें? नहीं, और जो वेंटिलेटर के लिए लगा हुआ है सब चारों लगा हुआ है। वो पंखा है क्या? एग्जॉस्ट का पंखा है? एग्जॉस्ट का फैन पंखा नहीं लगा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा है, बस वेंटिलेटर के लिए लगा हुआ है।
सिर्फ आप Ventilation. प्रोविजन वेंटिलेटर का प्रोविजन है बस, हाँ, वो पंखा Okay. नहीं है। हाँ, गैस कनेक्शन कैसे लेते हैं, कहाँ से है यह पाइपलाइन? आउटसाइड में गैस है। लास्ट टाइम भी सर बोले थे कि आउटसाइड रखने के लिए साइड में ओहो, that's not safe. कॉरिडोर में रखे हैं। यहाँ से गैस कनेक्शन है। नहीं, कैसे लाए हैं? कॉरिडोर से आप सिलेंडर लगा करके वो गैस सिलेंडर पहले दिखा पाइप दीजिए, यहाँ पे पहले वो पाइप सिलेंडर दिखा दीजिए, जी मैम। गैस सिलेंडर दिखा सिलेंडर दीजिए। कहाँ पर रखे हैं? ये कॉरिडोर है कॉरिडोर है मैम। और इसका पाइप कैसे गया है अंदर? ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर आपका सेफ्टी किधर है सर? मैम। ये बच्चों के लिए क्या सेफ है this is- क्या? This is not safe. ऐसे रखने से बहुत ना वो सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए जब गैस के साथ हम डील कर रहे हैं ना, और बच्चे लोग हैं, ये थोड़ा सा सेफ नहीं दिख रहा है। सेफ्टी प्रीवियसली ध्यान पे रख दीजिए आप, वो जो सेफ्टी। स्पिरिट लैम्प में कर रहे थे तो इंस्पेक्शन है कमेटी क्या? आए थे, वो स्पिरिट लैम्प से कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्शन कमेटी जो लास्ट टाइम आए थे वो बोले कि सीनियर सेकेंडरी 11th और गैस 12th का कनेक्शन एफिलिएशन चाहिए कर रहे हैं तो और वो गैस चाहिए। हाँ नहीं वो चाहिए और वो लैब के बाहर होना चाहिए। करेक्ट, लेकिन वो पाइपलाइन कैसे लाए हैं? वो पाइप देख लीजिए आप, गैस सिलेंडर से ये टेबल तक कैसे लाए हैं वो पाइप, वो सेफ नहीं है इसे लाने के लिए। बच्चों सिलेंडर भी की कॉरिडोर में सेफ्टी ध्यान में रख के लाना है। ये प्रायोरिटी आप हर चीज स्कूल में सेफ्टी हिसाब से देखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जी मैम, जी मैम। सेफ्टी हिसाब से वो सब ध्यान में रख के कुछ भी यहाँ पे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सेफ्टी पहला रूल है, सेफ है क्या बच्चों के लिए, वो ध्यान में रख के करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स है क्या? सॉरी मैम। फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स आउटसाइड नहीं, अंदर लैब के अंदर है, लैब के अंदर है क्या? लैब में किधर है? एक बाहर है, अंदर है, डोर के पास लगा हुआ है, वो गैस के पास। ठीक है। एसिड सब कहाँ पर स्टोर किया है? एसिड यहाँ पे ये लॉक रहता है मैम, ऐसे ऐसे इसको लॉक करते हैं, यहाँ पे ऐसे लॉक कर देते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए इसको हम ऐसे ही रखे हैं। वो टीचर है क्या, केमिस्ट्री का टीचर वहां पर? जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. One is, please look into the safety aspects, because the gas cylinder, what we are seeing, and the pipeline that it has come, any child can trip and fall, and the gas connection like that, if anything, any holes in that, the gas can leak. Are And the you pipe able to hear me? can also come off. If The pipeline can come out. There are so many, we have to be extremely cautious. Another thing is, you have kept the acids like that. I would recommend you to keep it in a sand tray. For 11th and 12th, you need a separate preparation room. It cannot be a part of the chemistry lab like this. There has to be a preparation room. जो कि आपको corner side, you can cordon off one side and you can utilize, but keep the acids in a. I would recommend keeping it in a sand tray. More safe. Yeah. Okay. Safety is very, very important to be seen, especially in chemistry labs. Though other labs also equally, here they're dealing with so many hazardous items. Yeah. Okay. So yeah, again the workstation. Is there a stock register, sir? Here. Sorry ma'am. Stock register. So again, Dr. Reshma, there's only one two Table. tables. It's the Again, same format for all the 3 labs they have done.
It's looking, they have not invested on working stations. Yeah. Stock book, register book, sir. Stock वो register गैस book. वैस बंद कर दीजिएगा आप, जो आपने जलाया था गैस वो सब बंद कर दीजिएगा, उधर बच्चे हैं। गैस बंद कर। हाँ, ओके, यहाँ बंद पर कर दिखा दीजिए, ये स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिए प्लीज, खोल दीजिए। ठीक है, ओके। बस इंडेक्स में एंट्री करते हैं। मुझे इसमें आपका कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल कैसे बाइफर्ट किया है दिखा दीजिए। कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल का दिखा दीजिए। स्टॉक में सेपरेट नहीं किए, एक साथ लिखिए। फिर कैसे ट्रैक कर Quantity- देंगे आप, कैसे ट्रैक Quantity- करेंगे आप? कंज्यूमेबल का अलग होना चाहिए, नॉन कंज्यूमेबल का अलग होना चाहिए, ओके जो मैम। फिक्स्ड है, ताकि आपको बैलेंस कितना है, कितना केमिकल्स यूज किया है, कितना बैलेंस है, वो सब आप कैसे एंट्री कर रहे हैं, कितना केमिकल अभी बचा है। अभी वहां पर नाइट्रिक एसिड लिखा है, जी मैम। कितना कितना है आपके पास स्टॉक, कितना ml है? 400 ml। कैसे पता चलेगा हमको? मैम बोले कि किससे पता चले, उसका उसने कंज्यूम यूज ही नहीं किया, खरीदने के बाद यूज ही नहीं किया। मैम इसके लिए मैम सेपरेट करना होगा मैम, एक कंज्यूमेबल का और एक प्लीज और उसी के कर लिए दीजिए। साइड इसको अलग कर देंगे। आगे वो सब रख दीजिए, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, कितना कितना खत्म हुआ ये है, रजिस्टर कितना स्टॉक बैलेंस है आज के दिन के, वो सब आप रख दीजिए, ठीक है? मैम ये And एक also, mandatory you must have a lab assistant mandatorily in the chemistry lab. You cannot ma'am. work in a chemistry lab without a lab assistant. जी मैम। Okay. Indu ma'am, shall we go to the next? We'll go to the composite labs now. There's a problem with the composite lab also. So let's go. Since we are doing labs, let's do the composite lab. Oh, composite lab दिखा दीजिए सर। Composite lab और फिर math lab, दोनों labs दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है। Again long view दिखा दीजिए प्लीज। ये थोड़ा सा छोटा रूम है, छोटा है मैम, थोड़ा छोटा है। छोटा ये है। कितना कितना स्क्वायर फीट है? 500 से 500 होगा मैक्सिमम। 500 नहीं दिख रहा है। मेजरिंग थोड़ा टेप है क्या? मैम ये थोड़ा पहले से मैम ये सेटअप है इसमें, मतलब ये मेजरिंग टेप चाहिए, यहाँ पर है? नहीं, ये तो मेरे पास अभी नहीं है। मेजरिंग टेप डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। छोटा है एक्चुअली मैम, ये 500 definitely it's not 500. मैम आई एग्री इज लेस देन 500 मैम। हाँ, Listen now. Also, the wall is looking damaged. Right in front, I can see a damaged wall. Is that wall damaged? नो नो, इट इज द क्रैक मैम, मतलब जो कपबोर्ड है ना, Crack है ना? Crack हम है ये ना दीवार में? ये कपबोर्ड है मैम, ये कंप्लीट कपबोर्ड है मैम। जहां आपका सिंक है ना, उधर देखिए आप, क्रैक है ना दीवार में? हाँ ये देखिए कितना बड़ा क्रैक है उधर, ये देखिए, दूर से दिखाइए थोड़ा। See, there is a huge crack. बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना? No, there's nothing happening behind it. So नहीं, this is बाजू just में damage. कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे थोड़ा सा सीमेंट डाल they could have closed the is what I meant. Yeah. ठीक है। ये composite lab का आपका स्टॉक रजिस्टर है क्या? स्टॉक रजिस्टर सर
क्या क्या आइटम्स है कंपोजिट लैब में? यहाँ पे भी मुझे बर्नर दिख रहा था, यहाँ का बर्नर आपने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, दिखाइए तो। नहीं जलाइए नहीं, आप इसको दिखाइए, आपका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है इसमें? हम ये पाइपलाइन तो कहाँ से लाए हैं? गैस का ये पाइपलाइन। पहले से गैस, ये पहले से इसमें जो गैस कनेक्शन था लास्ट टाइम जो सारा थे बोले कि इसके अंदर नहीं रहेगा, तो गैस कनेक्शन को हटा दीजिए इसमें अभी। यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है, राइट? ये बोल रहे हैं आप? हटा दिया है। मतलब गैस And- सर बोले कि इसका लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, सॉरी लैबोरेटरी के अंदर, कोई भी लैबोरेटरी के अंदर गैस नहीं रहेगा, गैस टैंक नहीं रहेगा। ओके, एंड दिस इज अ वुडन टेबल, ये वुडन टेबल है? हाँ, ये उसके ऊपर एक मतलब मैट लगा हुआ है, वुडन टेबल है, उसके ऊपर मैट लगा हुआ है। लैमिनेट। हाँ, लैमिनेटेड मैट जो होता है ना, वाटर प्रूफ वाला वही। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है? एग्जॉस्ट फैन इसमें नहीं है, वही वो जो ये है वेंटिलेटर के लिए वहां पे जो है वेंटिलेशन। ये है एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर है बाहर में। कहाँ? नहीं है। कहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर? कंपोज इसमें नहीं है, कहाँ इसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। सेफ्टी हमेशा लैब्स स्पेशली सेफ्टी का ध्यान में रख दीजिए प्लीज। ठीक है। स्टॉक रजिस्टर भी नहीं दिखाया आपने। And the measurement also we don't know of this room. It looks very small. It's definitely not 500. Now he's saying no, it's less than 500. So it is Right. not as per the norms. It was previously मतलब सेटअप हुआ था जो स्कूल बिगिनिंग के टाइम में, बाद में चेंज हुआ तो ये वहीं पर मैम चल रहा है। तो ये तो बहुत पुराना हमारा स्कूल में, तो यहाँ एंट्री नहीं है स्टॉक रजिस्टर में। किया था सीबीएसई ने ये सब रेक्टिफाई करने के लिए, आपको ये सब मेंशन किया था कि ये कमी है, उसको आपको रेक्टिफाई करना था। अभी भी वही सब प्रॉब्लम्स है जो आपको लिख के दिया। मैम वो जो जितना भी था वो सब चेंजेस हम कर दिए सारे, कुछ जितना भी लैब में वो डेफिशिएंसीज बोले थे सब कुछ ऐड कर दिए, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो गैस कनेक्शन वगैरह जितने जितने हमको सजेस्ट किया गया था उसी हिसाब से सारे कुछ ऐड किए और चेंजेस भी किए। लेकिन सेफ्टी भी ध्यान में रख दीजिए, गैस कनेक्शन कैसे लाना है क्लास लैब के अंदर, वो ऐसा पाइपलाइंस खुला रखे हैं आप, ऐसा नहीं करते हैं, वो सेफ नहीं दिख रहा है। मैं एक्चुअली इसके रिलेटेड बात कर लूंगा मैनेजमेंट से। एक्चुअली यहाँ पे नजदीक मतलब ऐसे कुछ फैसिलिटीज नहीं कि उसको जो प्रॉपर वायरिंग होता है वो वायरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का आपका प्लग पॉइंट, सॉकेट्स, वो सब ठीक से रखना चाहिए। ठीक है, अभी कंप्यूटर लैब दिखा दीजिए। मैथ लैब या कंप्यूटर जो भी आपका नजदीक में है, मैथ लैब या कंप्यूटर दिख रहा है, दिखाइए। ठीक है, लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए। लॉन्ग शॉट कितना सिस्टम्स है, काउंट कर दीजिए। 32 रनिंग है मैम। हाँ, 32 रनिंग है। 32 दिखाइए, एक एक करके दिखा दीजिए प्लीज। 1 2 3, ये ऑन नहीं है। 4 5 6 7 8 भी स्विच ऑफ है। 8 9 10 11 12 13 भी स्विच ऑफ। 14 15 16 17 switch off, 18 19 switch off, 20 21 22 23
कितना था? 40 होना चाहिए. And all wires are hanging. आपके सारे wires exposed है. Sockets बच्चों के एकदम reach में है. जी मैम, आपके wires सब exposed है. Sockets बच्चों के reach में एकदम पास में sockets है. Electrical sockets. वो सिस्टम के पीछे है मैम. बच्चों के reach में है वो. आपका कंप्यूटर टीचर है? हेलो, नमस्ते मैम. You are not able to hear us? Which classes do you teach? No, that's fine. Which classes do you teach? Now. Huh? Standard 3. Standard 3. Yes, ma'am. What is your qualification, ma'am? क्वालिफिकेशन. MS Bench. क्वालिफिकेशन आप क्या क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं? Postgraduate Economics. Then PGDCA and OSC IT qualified and Tally. 9.0. Hindu ma'am, any questions? What are you teaching in class 3? What are you teaching the children? What are you teaching in class? Computer. No, what in computers? What are you teaching them? Huh? MS Paint. MS Paint. MS Paint. Okay. Yes, ma'am. So, who teaches class 10th? 10th. Who's the computer teacher of class 10? क्लास 10 का कंप्यूटर टीचर कौन है? So if she is the PRT, do you also have TGT? आपके पास TGT भी है क्या? कंप्यूटर? ये PRT है अगर? सर आप मैथ लैब दिखा दीजिए सर. ऑन कर देते हैं. ये क्या है? नेटवर्क इश्यूज हो रहा है? Yeah. They're facing some network issues. Looks like, yes. What is this QR code now? सर आपका नेटवर्क कुछ इश्यूज हो रहा है? मैम अभी आ गया मैम. नहीं. आपका स्क्रीन अभी भी फ्रीज हुआ है. स्क्रीन मैम आ गया अभी. नहीं. मैम जी बोलना मैम. No, sir. The screen is freezing. Blank. It's frozen. मैम जी बोलना. No, sir. मैम कैन यू सी? I cannot. हेलो. Nothing is visible. हेलो मैम कैन यू सी दिस वन?
It is not visible. सर आप पूछ Am I audible? के लॉग आउट लॉग इन करना चाहिए शायद. Am I audible, ma'am? आप एक बार सर से चेक करके लॉग आउट करके रीजॉइन करना चाहिए शायद. आपका स्क्रीन फुल फ्रीज हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है हमको. सर आप रिज्वाइन कर लीजिए. As per this, I think only math lab is remaining. So, so we will need to, if you've seen the online portal, we will be required to verify the land area of the school. We'll be required to verify the building safety certificate, water and sanitation certificate, मैम and special educator भी इनका no है. So that's also there. If they have a special educator, we can ask them. सर आप कुछ बता रहे थे संजीत सर? मेनली जो रिजेक्शन लेटर में जो है ना मेंशन, उसी को कवर करना होता है. करेक्ट, वो मैथ लैब एक पेंडिंग है सर. जी जी. So जी, ma'am. अंदर फॉर्म में ये सब भरना है, फिर बाद में इनसे लेना होगा. Ramp for physically handicapped also the form will ask us to fill up. And EPF registration, so that's another document that we need from them. These are the things that are required inside the form. वो तो सैलरी और ईपीएफ शेयर करेंगे मैम, वो ने बताया. वो तो अपलोड भी करना है. अभी मैथ लैब एक पेंडिंग है सर, जी, इसके जी. हिसाब से. उनका कैमरा कुछ फ्रीज हो रहा है. ओके, एक लॉन्ग व्यू दिखा दीजिए. It's the same arrangement. क्या डायमेंशन है ये रूम का? 500 स्क्वायर फीट है क्या? कितना है? सर, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, It's come back now. Yeah. इसका क्या एरिया है मैथ लैब का? इसका 500 मैम. 500 स्क्वायर फीट. ठीक है, यहाँ पर आपका जो आइटम्स है वो दिखा सकते हैं मैथ लैब का, क्या क्या आइटम्स है? स्टोरेज कहाँ है इसका? स्टॉक रजिस्टर दिखा सकते हैं? ये फ्रीज हो रहा है, स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिए. एंट्री किया है उसमें क्या क्या आइटम्स है करके? सर फ्रीज हो रहा है, दिखाई नहीं पड़, नॉट एबल टू सी सर, नहीं दिख रहा है.
Not able to see. मैथ लैब में क्या क्या आइटम्स है वो दिखाना चाहिए सर, दिखा दीजिए। I think they're facing network issues. If they complete this math lab, then at least what is given in this will be completed. All the points. Yes. The other points. Yeah, all the points that has come as. Audible now? हाँ ठीक है, ठीक से दिखा दीजिए जल्दी। स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिए फिर तो। हाँ ये बिल है। हाँ क्या क्या आइटम्स, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, बिल नहीं चाहिए। कितना है आइटम्स? सब एक एक खरीद लिया है। 15 आइटम्स, 15 ना, कितना आइटम्स है? 15 आइटम्स एक एक खरीद लिया है। ये बच्चे कैसे करेंगे इसमें कुछ भी, सब अलग अलग चीज थोड़ी करेंगे। ये रिसेंट आइटम है जो नया ऐड हुआ है, और बाकी जो है ये जो पूरा किधर है सब, वो नया सेट्स किधर है? नहीं दिख रहा है। ये जो लिस्ट दिख रहा है ये सब नया सेट्स है, कुछ ऐड हुआ है। ये नया सेट, एक ही सेट खरीद लिया ना? में भी ये नया एक सेट किया है, एक। बाकी और कुछ पुराना जो है हमारा बाहर करेंगे। पुराना वाला स्टॉक ये सब- रजिस्टर में एंट्री नहीं है? पुराना सामान का स्टॉक रजिस्टर में एंट्री? वो पुराना रजिस्टर एक था, जैसे कि वो गलती हुआ था, सब बोले कि एक ही रजिस्टर में नया करके ऐड करो, तो हम सब नया, सब जितना पुराना था सब हटा के अभी नए सब कर दिए, एक ही रजिस्टर में सब कुछ ऐड कर दिए। सर आपका स्कूल स्ट्रेंथ क्या है? एग्जैक्टली स्ट्रेंथ प्रिंसिपल स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सर, हमारा एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कितना स्टूडेंट्स है? 369। सॉरी 360। फिर एक एक आइटम खरीद लिया है ना मैथ लैब में? सिर्फ एक एक है, वो कम पड़ जाएगा। एक क्लास में मैक्सिमम कितना है? और किसी भी क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 32 है। तो आपका एक क्लास में 32 है, तो लैब्स में भी कंप्यूटर लैब्स में 32 वर्किंग मशीन्स, मैथ लैब में भी 32 बच्चों को काम करने के लिए सब कुछ होना चाहिए। Sir, we have completed from this. We have completed. Yeah. आप स्पेशल एजुकेटर या इंफर्मरी रूम्स ये सब है स्कूल में? जी मैम, इंफर्मरी रूम, फर्स्ट एड रूम है? हाँ फर्स्ट एड रूम है मैम। और स्पेशल एजुकेटर है स्कूल में?
स्पेशल एजुकेटर सर? कोई सर हमारे यहाँ पे CWSM स्टूडेंट नहीं है। नहीं So they है। don't have. ओके So they will have to mail you, Dr. Reshma, they'll have to mail you the building safety certificate. that the sir water will and give the sir will give now the permission for them to जी, जी। upload. He'll take care of those. Thank You'll you. have to So allow them all to upload. all points are covered now, ma'am. As per the letter that we have received, we have covered. Okay. Yeah, all So can I points are stop recording now? Yes. Library, they have not mentioned anything. Okay. Yeah. No So issue, ma'am. Thank you for participating in the meeting. आप सभी का धन्यवाद. नमस्ते. सर नमस्ते। थैंक यू Thank सर। you. नमस्ते।